What is love? Baby, don't hurt me. Hello. Hello, and welcome to our new episode. Another video of the Marathon Web Show. Is this love? What is love? So last two episodes we were not together, and now we have come back together again. As you can see, I'm already hinting towards what we're going to be talking about today, and it will be primarily related to Your love. voice will come. Put it on my face. Sorry, love. It starts beautifully, but is it a myth? Is the forever together forever a myth in today's time? Can anybody have together forever? We're going to be discussing what is related to love and why are so many divorces happening. Shocking news that's happening is A.R. Rahman's divorce. With all due respect to the god of music, A.R. Rahman, and his picture perfect love story that he always had, what went wrong is not our thing to discuss because it's a personal thing. But we really want to talk about what is it that a man wants and what is it that kind of pulls him away. So I'm going to ask my husband, what do you think? What is it that makes a man move out of the relationship? तो हम ऐसा करेंगे कि ऐसे कि men are responsible for it, and we will talk about women are responsible for it. No. It's solely a man's responsibility to maintain the relationship when it comes to divorces and all because he's the chat, he's the provider, and he is everything that protects. How can a woman protect a relationship? It's the protector is the man. What is the women's responsibility then? To nurture him, to stand with him, to support him through thick and thins. So that is the relationship. Yep. What are you doing? क्यों मार दे रहे हो? No, तुम चाहते हो वैसे करो. हाँ. no, I'm Viplav saying the ghost. no, baby. You don't ghost me. तो तुम भी तो ऐसे कर रहे हो ना Let it बार be. बार. Let it be. It's fine. So basically, what we are going to be discussing is very crucial to understand that today we are very young, right? We are 30s and we are very happy together. And fortunately, we might be having children. That's the goal every family, every couple has. That you will get married, you'll have children, and he and you will become grandparents together one day. अरे तो दिस इज ये तो वही बात हो गया ना. सॉरी, वही बात नहीं हो गया. ये तो वही कंटिन्यूएशन हो गया ना कि जो डिवोर्स पे बात करना है, जो हमारा टॉपिक रह गया था कि व्हाई इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट. बिकॉज Yeah. लोगों के शायद आइडिया में ये है नहीं ना कि व्हाई शुड आई कीप द रिलेशनशिप. अगर किसी भी वजह से हो रहा है, लेट्स से कि तुम्हारे में अनबन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे तो पास में आओ. हैं, आ जाएगी आवाज आ जाएगी. तो ये सब तो यही रीजन है ना कि लाइक व्हाई तुम्हारा व्हाई क्लियर नहीं है ना. Yeah. Why you are in the relationship? Why are you married? Yeah. Why should be you with this person? है ना? Why should you be taking the drama? Why should you be giving the drama? Now, ड्रामा when देना क्यों है? when ड्रामा it देना is क्यों है? ये सब होगा. when it is a है ना? relationship which is more So than 10 years, 15 years, 20 years, why becomes the important ना? when it is even a relationship which is more than 20, 25 years, and then it breaks, so obviously the why was clear. नहीं, how is why the clear? Why was clear. नहीं, how? Then how did it break? Eventually, the man falls apart in his mid 50s. His What midlife if the crisis women hits. fall apart? It's not, yeah, that will be only if it's not giving her love. What if she's getting the love but she's very mischievous? Now, in this situation, we will be understanding one thing. We are going to talk about only good character women. Then what about good character men? They don't exist. 90% people are not. 90% men are not good character. आजकल तो 90% women also are not good character. Let's not get into पुराने the टाइम character. के Please बातें understand, पुरानी हो Viplav. गई. Let's not get into the character. Women expecting. अभी तो तुमने आदमी के कैरेक्टर का बात. अच्छा, आदमी का कैरेक्टर का चलता है, औरत का कैरेक्टर नहीं चलता. Listen, please, Viplav. Let's keep it serious. सीरियस, मैं तो सीरियस हूँ. When you get married to a man, what is the goal? You want to have this beautiful life He also wants to together. come. भाग He गया, has been wanting to come from. भाग गया, भाग गया, भाग गया. He has to come. Can he come via me? Yes, he is Prince, and he is a very cute cat, and he also can't establish monogamous he long-term just can't relationship. have monogamous relationship. He's very clear about it. He multi-times in front of us, and he's got 4 girlfriends at the same time, and he gives each one of them equally same love. Nobody can complain that he's behaving differently with me, right, Prince? You can see how innocent
he is. So that's what He's not. happens with a He lot of just men have as an well. innocent face. He's not innocent. That's what happens with a lot of men. They look innocent and very cute and very charming, but they would give love to like five different women equally same. No difference. Yeah. So Yeah, this yeah. mischievous laughter you can understand. Ah, whoa. See, What is when a this? man is appealing, a lot of women might be interested in the man, but then um, he doesn't understand that his actions can be so detrimental. The like go with the flow attitude. I don't really care so much. I don't think so much. One life will live. This kind of arguments can really tear apart a woman, and that is you're not killing a person. You're not murdering someone, but you're actually killing them. Also the You're killing their kids. soul. Also the kids. Right, divorce होता है तो must be so much problem the kids must be going. I don't know it. And I as don't I was understand telling it. in yesterday's episode also, I mean I was telling that why are women also a cause of these अच्छा breakups नहीं and see marriages? नहीं 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 It's नहीं. breaking also Okay, tell because me why is women this? today are not able to express their vulnerability. They do not show how weak they can be inside because they like to project a very strong frontier. Like it doesn't really bother me. अच्छा I'm मैं independent. एक और बात बोल रहा हूँ That's ना also कि something. ऐसा क्यों हुआ है कि आज के टाइम में जो इतना बढ़ गया है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं राइट नहीं मान रहे. नहीं सुनो तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो विच इज है कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो लास्ट जनरेशन के दे हैव नॉट सीन इट सबके पेरेंट्स तो साथ में ही रहते थे लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल Most राइट of the people. Yeah. तो व्हाई जिनके पेरेंट्स साथ में थे हु हैव अ गुड लाइफ बिकॉज यू नो मतलब पेरेंट्स साथ में नहीं है तो दैट इज लाइक अ वेरी बैड Yeah. लाइफ Yeah. है ना व्हाटएवर इट इज है ना हो सकता है पैसे वैसे का है तुम्हारे घर में स्टिल राइट इट्स अ बैड लाइफ इट्स नॉट अ गुड लाइफ Hmm. तो हु हैज बीन थ्रू दिस उनके बच्चे जब वो डिवोर्स होता है तो व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट देयर किड्स Yeah, I think a lot of the well reason, it's not like these people are coming from broken families right most of their parents stay yeah, together I think a lot of the reason today is also for a is also basically the fact that how a man handles a woman's success. Earlier, you will see most of the women were let him go used to give up on their career, would not have their own individuality, and would basically sacrifice everything for the family life. But today, what is happening is women do sacrifice when they are bearing a child and the child is growing. But once the child is in college, she wants to take charge of her life again and she wants to live the life again, right? And in that those moments, if a man cannot handle that and he feels that, oh, she's being too, she's too outgoing now, she doesn't need me, and basically I feel it's the midlife crisis, the point for validation, how a man really feels like, I have to validate how powerful I am and still a good looking person. And how he does is by getting younger females attention. When he dates younger women, he starts believing that, yeah, I mean, I'm not bad, I'm good. तो फिर 20 साल से क्या कर रहा था The midlife crisis hits him when he's 50 and he नहीं तो starts, 40s में क्यों नहीं हुआ yeah, 40s, 50s, whatever age. हाँ? It's basically नहीं तो शुरू से ही क्यों नहीं वैलिडेशन his तो सबको his सब चाहिए नहीं चाहिए तो requirement for validation. His requirement for validation that makes him forget that he had a wife who in her peak of youth when she could be with anybody and she could be promiscuous too, she chose to be faithful to him, to have a beautiful family with him. And now that she has his child, his family, his everything, he's like, you're an emotional fool. So what the hell am I supposed to do? I gave you money, I gave you stability, I also gave you a lot of things. Now just get out of my life. I found somebody better. You see her, she's so pretty, she's so lean, thin, strong, and I can have a child with her again. And that kind of gives that, masculine push to him, thinking that, yeah, he is still good. तो Yeah, नहीं ऐसे कैसे है कि मैं इसको इन पुश यू डिड नॉट नीड इन 30s or 20s or 40s you tell me. huh? I don't know I don't experience that Yeah, you're in 30s, that's why you're not experiencing it. Think about the fact that when you're 50, what will make you like, nobody plans a divorce, right, when they get married. why not I mean, a guy maybe take some people do see a lot of times it is pretty understandable. A man doesn't really need to get married. He chooses to get married because he wants that stability in his life and he wants to really provide to some नहीं तो woman. ऐसे तो women also women can doesn't need to get married even more No, women need. why Women need the protection. Women need the foundation, that safety. Women get married for security. A man doesn't marry for security. He's secured. And he आदमी can को have sex with multiple women. He doesn't marry for sex also. आदमी को खाना A वाना चाहिए man था chooses, he can have a maid for it. He doesn't need a woman to. then you have to pay
A man doesn't need to get married. When he chooses to get married, it's coming out of a place of providing and of love. So when he I don't chooses, know, I don't understand. just it's the paradox. Problem is कि This is the बहुत paradox. ज़्यादा बढ़ गया है. इसका बात देखो. This is the paradox. Problem is कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बहुत What is ज़्यादा it? हो रहा है. I don't know what is the problem, like what is causing it. It's I think it's not one factor. It's like so many factors. Society is in like chaos right now. Yeah. I think chaos के फेज से गुजर रहा है. Maybe कुछ टाइम बाद जाके stabilize होगा society. तो maybe things at that point of time you would be able to better know that हमारा second हमारे बच्चों के बच्चे जब आएंगे तो उनको समझ में आएगा actually कि क्या चल रहा है शायद. Yeah, and it is not okay. It I is mean, just we should not be normal. chaos. We should not be normalizing it at all. Like, this is something that needs. Even if you are an Aishwarya Rai, you are not good enough for your husband. Seriously, like, you are the most beautiful woman. You have given up all your life, and you know the kind of movies you could do. You have left all of that, and you chose to be with a man bearing his child and living a family life. And what happened suddenly that you were just suddenly divorced? I mean, the woman did not need to, date some other London-based businessman. She is Miss World and she has a lot of money herself. She doesn't need to do that. She was happily living with him. What happens that a man, even after marrying an Aishwarya Rai, it's not satisfied, because sometimes you can say the girl is not pretty, but when it's Aishwarya Rai, you can't say she's not pretty. She is not great. She was the most beautiful woman in the world, and it should not be okay because a woman. You're the most beautiful woman in the world. That's for you. I'm grateful that my husband thinks that, and I don't need anyone else to feel that. But Aishwarya Rai is a standard. This is like the cringe content for the YouTube. So today, the way we are smiling, we're Give laughing. some cringe content. How scary is it? Just ऐसे imagine. मुंह बना के बात कर दो. अरे, How scary is it for YouTube and the world to see that you get married to somebody, yeah. bear their child, कोई sacrifice your life, right now तो कोई and हमारा then guess what? When you're 50 and your body is not young and hot and all appealing, according to a, comparing to a 20-year-old, the man just decides to be like, okay, bye. but आदमी भी You तो make me 50 look साल old. आदमी भी तो 50 साल का हो गया ना उस टाइम But you make me look old, you old woman. Why should I hang out with you? I need a आदमी भी thin तो chick 50 with साल का है. me. I'll hold her दोनों one. तो बराबर एज के ही हैं almost. Yeah, but when a younger girl stands with him, then he looks very appealing, no? यंगर लड़का भी तो खड़ा हो सकता है साइड में. That's what women are doing, finding a younger guy and dating a younger man. But do you think you'd want to be with some other man and not your husband? The woman wants to be with her husband no matter what. Nah. And that's where the problem lies. I don't Today, women are not expressing so themselves. many people you talk to, they are just doing it. It doesn't matter what husband is doing. They You are know just why? interested in someone else. You know why? No, ये husband का fault नहीं है. चल. You know why? Nah. Because he's not providing love. No, that's not true. That's not true. Some women are also just dissatisfied and also. I'm not talking about those women. I'm talking about the committed women. So why are you talking about those men then? ये तो बहुत ही partial हो गया. I'm saying a man who has Sorry, partial हो गया. a man who has a committed woman, why would he leave her at 50s, man? Why? He doesn't. He does. No, if the man is committed, woman is committed, कोई छोड़ के नहीं जाता. He's not committed, na. He'll just go cheat. He'll have Women will also he'll go have and an he'll have a this Women will thing also go and cheat. affair with his secretary Women will also or go and his cheat. receptionist or some random chick out there who's like just waiting. And there are women also out there who don't give zero rat's ass if the guy is married or not. It's like Actually- लड़का अच्छा दिखता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है. Like if you are also a homebreaker like that, then obviously the society is going to become dysfunctional after a certain point. You have to have the respect that he's somebody else's husband. तो छोड़ ना उसको, छोड़, बहुत सारे options आजकल हैं. जैसे क्या कहते हैं बैटल ऑफ सेक्सेस बहुत ज्यादा वो हो गया है, चलन में आ गया है. What battle? I don't know. Women are supposed to be protected. How can a man have a battle with the woman? जाके you see ना ट्विटर पे अमेरिका में क्या चल रहा है. आदमी को बनाया गया है औरत को ज्यादा. प्रोटेक्ट करने के लिए. How can an आदमी fight a woman? But then आदमी से ना then if we have the extra responsibility, then why equal rights do you want? Why do you want equal rights? This is a very basic. Priyanka Chopra said now once, it's a cerebral equal rights, not actual equal rights. Cerebral, like in opportunities. Cerebral. Why in opportunity? Mind. Why in opportunity? Stay at home, stay protected. See, कोई औरत बाहर काम ही नहीं करेगी तो आदमी अफेयर किसके साथ करेगा? Wow. Right? Do you want to join RSS? सबके
सबकी दिस इज लाइक राइट विंग प्रोपेगेंडा सबकी टॉक्स। सबकी सबकी लड़की बीवी को बाहर ही मत निकलने दो। सबकी बीवी अपने अपने घर पे हाँ, बैठी है, घर पे रहेगी, कोई बाहर कोई नहीं बाहर है, जाने की किसके जरूरत साथ नहीं है। अफेयर हो। अब ये जो व्हाट विमेन एम्पावरमेंट वी आर जो टॉकिंग अबाउट, राइट? अफगानिस्तान के लोग हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, एक्चुअली में तो प्रॉब्लम होता है, एम्पावर्ड वुमेन ही तो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एक वुमन जब एम्पावर्ड नहीं होती है, तो एम्पावर्ड एक्चुअली वुमेन ही तो जाके फिर अफेयर करती है, मैं एम्पावर नहीं, हो गई, गलत बात अब है मैं यार, जाकर ये ऑफिस में गलत बात किसी है। नए कोलीग के नहीं साथ नहीं अफेयर नहीं, कर दिस इज लेती है। नॉट राइट ना। एक वुमन अगर एम्पावर्ड है, वो पहले तो सुबह उठ के अपने घर का टेक केयर कर रही है, खुद का टेक केयर कर रही है, अपने हस्बैंड का कर रही है, बच्चों का कर रही है, उसके ऊपर एक तो पहले एडेड प्रेशर हो गया, बिकॉज शी इज अ वुमन, दैट्स इट। इसी से उसके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। राइट। वो भी उसने लिव करा, उसके बाद भी उसने आदमी कमिटमेंट से निभाया। सुनो, आदमी जो है ना, प्लीज प्लीज, उसके बाद भी उसने कमिटमेंट से निभाया। उसके बाद भी वो टाइम पे गई ऑफिस में, अपना काम ऑनेस्टली किया, और उसके बाद भी शी हैड टू फेस सो मच ऑफ हेट जस्ट बिकॉज शी वाज एन एम्पावर्ड वुमन। पहले तो ऑफिस में जाके बॉस उस पे प्रेडेटर की तरह बिहेव करता है कि वुमन है तो लेट्स एक्सप्लॉइट हर, जैसे वो इंसान है ही नहीं। आदमी जो है ना, फिर वो उनको घर आती है, तो फिर घर ना आने के बाद उसके इन लॉज भी उस पर प्रेशराइज कि अरे बड़ी खुद को क्या समझती है। बहुत लोगों के नहीं भी हो सकते, बट बहुत लोगों के होते भी है। देन हर फैमिली मेंबर्स देर बी लाइक, ओ शी इज टू टू हाई फॉर हर, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो जेलसी हैज टू फेस। इतना सब कुछ फेस किया, एंड ऑफ द डे ये पता होता है कि पति साथ में है, और वो पति जब आप 50 साल के हो जाओ तो आपको चीट मार दे। व्हाट द हेल। ऐसा है ना कि आदमी जो होता है उसके पास रिलायंट नहीं होता है, आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हम्म। तभी तो पॉलिटिक्स ऐसा है। आज औरतों ने तो पॉलिटिक्स बनाया नहीं है, आदमियों ने ही बनाया ना पॉलिटिक्स, पूरा टाइम एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, आदमी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो बहुत ही स्केरी बात हो जाएगी ना, अगर आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते हो तो। नहीं कर सकते ना आदमी पे भरोसा, ऐसा ही सीन है। आदमियों को ठीक करना पड़ेगा, आदमियों को ऐसे स्कूल से क्लासेस देना पड़ेगा कि कैसे भरोसे लायक बनेंगे। स्कूल से बच्चा तो भरोसे तोड़ने वाला नहीं बनता है, वो तो बड़े होने के बाद बनता है, नहीं तो स्कूल 50 साल में से पहुंच के। फीडिंग करना पड़ेगा कि कैसे भरोसे लायक बनना चाहिए इंसान। 30 में भी वो अच्छा रहता है, स्कूल में भी अच्छा अलग से रहता है। ट्रेनिंग करवानी चाहिए लोगों को। लड़कों की आदमियों का अलग जो क्लास होनी चाहिए। पीयर प्रेशर रहता है ना, ओ मस्त बंदी है, या गर्लफ्रेंड तो एक बनती ही होगी ही ना, वाइफ है, सो व्हाट, यू हैव अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नो, कैसा आदमी है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बताओ? आदमी है तू? ये जो प्रेशर है आदमियों के ऊपर, तो क्या करना है उसको? मैकेनिकल कुछ एक्शन ही करने हैं। वो मैकेनिकल एक्शन तो आदमी किसी के साथ भी कर लेगा, तो फिर उसका घर टूट ही जाएगा नेचुरली। उसकी बीवी बच्चों के साथ उसका धोखा हो ही जाएगा ना। आदमी को करना क्या है? जिद करने के लिए कुछ भी नहीं। सो तो हमने पॉज कर दिया था, कुछ इंटरनल डिस्कशन चल रहा था हमारा। अब ये बताएंगे, माय हस्बैंड विल से, कि क्या रीजन है दैट अ मैन डज इट, और कैसे अ मैन कैन कंट्रोल आई हिज डोंट नो माइंड टू क्या नॉट रीजन डू। है, आदमियों का दिमाग खराब है, मुझे तो समझ नहीं आता है। हमारे बाप लोगों ने तो किया नहीं, काफी अच्छा लगता है, राइट। मतलब ये सोच के कि माँ अलग होती बाप अलग होती तो इट्स वेरी स्कैरी, है ना। बाप किसी और के साथ घूम रहा होता, किसी या अपनी उम्र स्कैरी, की लड़की को लेके घूम रहा होता, सो और स्कैरी, माँ किसी हमारी उम्र के लड़के को लेके घूम रही सो होती, तो इट्स स्कैरी। वेरी स्कैरी। तो माँ बाप ने तो किया नहीं। सो आई डोंट नो कि आजकल के लोग क्यों नहीं सोच रहे। आई थिंक थिंकिंग कैपेसिटी कम हो गया शायद, या लोगों का इमोशनल क्वेश्चन कम हो गया। हम्म आई डोंट नो, केयरिंग केयरिंग कम हो गया है शायद, ज़्यादा लाइक अपैथी हो हम्म गया है, राइट। लोग सोचते नहीं है, हम्म बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं। इट्स ऑल अबाउट हम्म मनी 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 या मनी, मैकेनिकल। बस यूट्यूब करो, जॉब करो, ये करो वो करो, और उसी में फिर चीट भी करो, आगे बढ़ो और मतलब इमोशंस हटा कम। दिए हैं शायद, है ना। हम्म इमोशन मतलब इमोशनल फूल, जो तुम कह रही थी। तो आई डोंट नो व्हाई आर पीपल डूइंग दिस। मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस भी तो अगेन तुम्हारे इमोशंस बैलेंस नहीं है, तभी तो तुम्हें मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है। व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस? दैट यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर एज, राइट, हम्म है ना। कि 60 साल का हो गया हूँ, पर हीरो तो मैं ही बनूंगा। हम्म पुराने जमाने के हीरो तो 60 साल में बाप बनने लगते थे, हम्म बट अभी के हीरो जो है वो 60 साल में भी हीरो बनेंगे। मुझे लगता है 10 साल बाद भी हम उन्हीं को हीरो देख रहे होंगे, बुढ़े होंगे, दांत गिर हाँ गया होगा, बट हीरो भाई। तो तुम उनको देखोगे तो तुम भी सोचोगे कि यार मैं भी तो इतना ही एज का हूँ, या राइट। मेरे बाप शाहरुख खान को सोच के देख के सोचे कि यार मैं भी तो, हम्म शाहरुख खान 60 साल का, मैं 62 साल का, हम्म मैं भी ऐसे ही घूम लेता हूँ बॉडी वॉडी बना के। तो नहीं, हम्म पर तो तुम्हारे तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगा ना। मेरा बाप जो है वो मेरे बाप की तरह रहता है, अच्छे से रखता है मुझे, मतलब मेरा एज होने के बाद भी लाइक ही इज रखते लाइक अ हैं। फादर। हाँ, इट्स लाइक लव लैंग्वेज ना। ये लव लैंग्वेजेस, हाँ तो दे हैव अ वेरी डिफरेंट बॉन्डिंग। या तो मतलब वो स्टिल ही लाइक इज लाइक अ फादर टू मी, बट इफ ही बिकम्स लाइक कि अरे अब तो मैं चला, जा रहा हूँ, सिक्स पैक एब वैब बनाता हूँ, तो अपनी माँ को देख देख देना, मैं चलता हूँ। अरे, क्या है ये सब? आई या कांट इवन थिंक समथिंग लाइक दिस। तो आई डोंट नो लोग क्यों नहीं सोचते हैं। और मतलब बच्चे बच्चे सबके होते हैं, ये क्या लगता है कि पैसे के काम चल जाएगा, बट अबाउट द इमोशंस,
है ना, Yeah. एंड यू आर नॉट फ्रॉम द पॉइंट जो मैं कह रहा था कि यू योरसेल्फ आर नॉट फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, तो Yeah. इट्स लाइक यू हैव सम इमोशनल इश्यूज Yeah. जो तुम्हारा फुलफिल नहीं हुआ. I think सो आई डोंट नो. continuous communication होना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अबाउट कम्युनिकेशन. मैं कह रहा हूँ कि आदमियों का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, Hmm. और उसके चलते चलते पीछे पीछे औरतों का भी दिमाग I खराब think हो गया. lust कुछ ज्यादा सेल हो रहा है. हाँ, बिकॉज आई थिंक वही बात है ना कि इमोशंस कम हो गए ना, Hmm. राइट. और उल्टा सीधा नंगी लड़की नाचते हुए साला जहाँ कोई भी खोलो तो दिख जाएगी, इतना सारा Hmm. ऐप आ गया, ये आ गया, वो आ Everywhere. गया, फिर आदमी बॉडी बना के ऐसे नंगा घूमता हुआ कुछ भी. Hmm. 4 वीडियो स्वैप करो Hmm. तो आदमी चड्डी पहन के वहाँ पे पता नहीं कुछ उठा रहा है. अरे यार नहीं देखना भाई, तो अपने पास रखना, क्या करूँ मैं देख के, Right. राइट. मुझे बॉडी बनाना होता तो मैं जिम में होता, बैठ के वीडियो थोड़ी देख रहा होता, है ना. तो मतलब बहुत ज्यादा लोअर लेवल थिंकिंग में आया है. इट्स हाँ, नॉट मतलब लाइक द हायर लेवल बहुत ज्यादा है, और कनेक्शन इज. क्या कहते हैं, इमोशंस बहुत कम हो गए हैं. बट क्या ये हमेशा से नहीं था? लाइक किंग्स यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ क्वींस, राइट? हाँ, बट जैसे वो किंग का होता था ना, आदमी बाकी जनता एक एक बीवी लेके चलाती थी. तो जो खुद को किंग समझने लगे वो ऐसे करने लगता है. मुझे क्या पता, मैंने कोई किंग का फिलोसफी और साइकोलॉजी तो स्टडी किया नहीं है. तो क्या बताऊं. तुम एज अ मैन यू कैन थिंक. नहीं देखो, मतलब मुझे जो समझ में आता है कि मोनोगमी ही होता था, ऐसा तो है नहीं. पॉलीगैमी वगैरह तो चलता ही था. उससे पहले तो पॉलीएंड्री भी होता था, एक औरत के पास भी कई सारे पति होते थे, राइट. उससे पहले आई डोंट नो, सोसाइटी जब इवॉल्व हो रहा था तो देयर वाज अ टाइम की, आई थिंक, आई डोंट नो कैसे, मतलब देयर But वाज if you नो. want to be in monogamy or not, you decide it from the beginning only, right? It's not when हाँ. your woman becomes 50-year-old and you have a child in graduation, you're bored of the woman and you say, now I don't feel connected with her anymore. I feel embarrassed to take her. She doesn't look that appealing. Obviously, the woman's face will change, सी na? सी what I'm, The मतलब woman can't look यार the same, na? जिद बोलने दो मुझे, Hmm. बोलने नहीं देते हो. तो मैं उधर से आ रहा था ना हिस्ट्री में, तो यू गेट, यू इवॉल्व, राइट. Hmm. डिवॉल्व तो नहीं होता है, हम Hmm. तो ये कहते हैं कि इवॉल्व हो रहा है इंसान. तो फिर इवॉल्व होते होते जब हम उस सिचुएशन में पहुंचे जहाँ पे मोनोगेमी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ, Hmm. ठीक है. यू कैन ऑल्सो से कि एक क्या तुम्हारा जो ब्रिटिश क्रिश्चियन टाइप का जो रूल्स है उनका एक पार्ट है, राइट. उन लोगों ने दुनिया भर में फैलाया, Hmm. राइट. Or it could be also like the societies were taking up for it, because I don't know, I don't know so much of history, but there has to be a historical aspect to it, है ना. बिकॉज सोसाइटी तो डेवलप होके यहाँ तक पहुंचा है, तो ऐसा क्यों, ऐसा जो था, जो एक अच्छा खासा कम से कम 100-150 साल का पीरियड था जहाँ पे थिंग्स वर क्वाइट स्टेबल. ठीक है, उसमें वर्ल्ड वॉर भी हुआ, विच इज लाइक हिस्टोरिकल, जैसे वो युवल नोवा हरारी वाला बुक है कि यू सेड कि वर्ल्ड वॉर 3 हिस्टोरिकली सबसे मतलब हाईएस्ट किलिंग का था, है ना. उस दिन जो हम एक बुक पढ़ रहे थे उसमें भी वो आ रहा था ना कि आई थिंक उसी का बुक था, दैट हाउ कम यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज एंड यू कैन नॉट कंटेन इट, एंड यू फाइट. और मतलब इतना नॉलेज होने के बाद भी यू नॉट एबल टू वर्क ऑन इट, है ना, एंड यू गो एंड यू फाइट वॉर्स, राइट नाउ ह्यूमन के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है स्टिल. सो आई थिंक कि बट एक पॉइंट था जो इतने साल थे, 100-150 साल, जिसमें ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टेबल था, डेमोक्रेसीज वगैरह चल रही थी, राइट. एक प्लान आया था जिसमें सोशलिज्म भी था, कैपिटलिज्म भी था, तुम्हारा मार्क्सिज्म भी था, सारे टाइप के सोसाइटीज भी डेवलप हो रहे थे. तो उन सब के साथ वो तुम्हारे सोसाइटी जैसा डेवलप होता है, वो तुम्हारे मतलब कम्युनिटी पे और फैमिली पे भी इम्पैक्ट करता है, राइट. बट उसमें स्टेबिलिटी आ रहा था, हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, है ना. वो ठीक है, उन्होंने शायद इतना दुनिया नहीं घूमा, इतना वर्ल्ड नहीं देखा, बट काफी ज्यादा स्टेबल लाइफ निकाला है. Yeah. तुम्हारे मॉम डैड ने भी काफी ज्यादा स्टेबल लाइफ निकाला है, Thanks for that. है We ना. also have the stability in हाँ, life. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टेबल लाइफ निकल रहा है बिकॉज दे हैड अ फैमिली. तो एक वन पॉइंट ऑफ टाइम सोसाइटी मूव टुवर्ड्स द फैमिली लाइफ. आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज दे वर बेनिफिट्स टू इट ना, नॉट बिकॉज समबडी वाज फोर्सिंग इट कि तुम एक ही शादी में रहोगे. कोई फोर्स तो कर नहीं सकता है ना. एक बार जब इंसान बड़ा हो जाए, 40 साल का पहुंच जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो सोसाइटी उसको फोर्स नहीं कर सकता ना कि तुम मोनोगमी में ही रहोगे या पॉलीगमी में ही रहोगे, है ना. तो अगर इंसान इस बात को लेके चल रहा था कि मेरे लिए ज्यादा फायदे की बात है, तो मतलब फायदे का था ना, सोसाइटी इवॉल्व हुआ ना. तो उस सिचुएशन से हम जब यहाँ पहुंचे हैं जहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ गया है, राइट. और हम पहले ये जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में सुनते थे कि वहाँ डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, तो क्या ये बस एक कॉपी कैट बिहेवियर है जो वो धीरे धीरे ट्रैश अपना उनका इधर आता जाता है धीरे धीरे, राइट. इज इट दैट, क्योंकि सोशल मीडिया के बाद इतना ज्यादा हमारा उनके वहाँ का जो कवरेज है वो इतना ज्यादा है कि ये इज इट दैट, और क्या हम एक्चुअली में इवॉल्व होने की जगह डिवॉल्व हो रहे हैं, या यू कैन से कि दिस इज ऑल्सो, बट ये तो हम घूम फिर के पीछे पुराने वाले टाइम में पहुंच जा रहे हैं जहाँ से इन्वॉल्व होकर हम स्टेबिलिटी में पहुंचे थे, वहां से हम फिर से डिस्टेबलाइज लाइफ में पहुंच जा रहे हैं, राइट. तो एक पॉइंट कहीं तो डिसाइड करना होगा कि व्हाट वाज बेटर फॉर द सोसाइटी, है ना. I feel there is a huge decline in the consciousness as a collective. Even though we are spiritually evolving,
the ethics, the ethical code, the moral codes have diminished a big deal. Things are being normalized, no matter how wrong it is. Divorces like Abhishek Aishwarya, then now A.R. Rahman, so saddening, so shocking. Things have been normalized, and everything is like okay. Yeah, that is true. That is very right. Everything is okay. Yeah, लड़की को जाके गाली देना is also normalized. Yeah, it's very है ना, normalized. कुछ छोटा सीधा बोलना कि अरे कौन हो, क्यों दिया जाएगा तुम्हें, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, हाँ। ऐसे जाके इंटरनेट पे कुछ छोटा सीधा बोलना, एक ट्रोल हम्म। अकाउंट बना के एंड देन 500 लोगों से जबरदस्ती बुलवाना. जबकि ये इंडिया है, द लैंड ऑफ, मतलब जहाँ से स्पिरिचुअलिटी एकदम इवॉल्व, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्लेस. तो यहाँ पे एक इंसान, हर एक इंसान के अंदर वो पावर है अपने अंदर की अच्छाई के साथ कनेक्टेड रहना. ये वो देश है जहाँ पे मतलब देर आर इनफ टूल्स गिवन टू स्टे अवे फ्रॉम द 5 वाइसेस, जिसमें से आई थिंक व्हेन अ मैन बिकम्स इंडिफरेंट, लस्ट टेक्स ओवर, and it's only then he becomes indifferent, because he doesn't care what's going to happen to her. He will give 100 reasons why she deserves it. Some ego battles, there's a lot of ego clashes. ईगो क्लैश आप उसी के साथ करोगे जिसको आप अपना नहीं मानते हो. आप अपने वाइफ को, जैसे शिव जी ने बोला, शिव इक्वल्स टू पार्वती इक्वल्स टू शिव, क्योंकि पार्वती माँ का पूजा नहीं हो रहा था, तब उन्होंने खुद बोला कि उनका पूजा तुम्हें करना है क्योंकि मैं वही हूँ. तभी तो उन्होंने अर्धनारीश्वर लिया था ना. तो जब शिव जी ने इस चीज को क्लियर किया, क्योंकि तभी भी तो ऋषि मुनि लोग बोल रहे थे कि वी विल वर्शिप द मैन हु इज शी, बट ही मेड श्योर दैट शी इज वर्शिप बिकॉज शिव इज शक्ति, शक्ति इज शिव. तो अब आदमी का मेल एंड फेमिनिन जो दो पार्ट्स है, वो एक ही आत्मा का दो रूप है. जब आप ऐसे सोचते हो तब आपका पार्टनर आप ही हो. तब आप अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैश ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो आप ही हो. आप अपने साथ ईगो लाओगे, जब वो आगे बढ़ेगी मतलब आप ही आगे बढ़ रहे हो, और आप जैसे आगे बढ़ते हो तो वुमन तो ऐसे सोचती है कि मेरे पति का अच्छा हो. आदमी जब वैसे सोचता है, क्योंकि शिव भी तो ऐसे सोचते थे, जो सबसे सबसे मैस्कुलिन फॉर्म का सबसे हाईएस्ट मैस्कुलिनिटी में है, जिनको माना जाता है. तो अभी आज के डेट पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से चीजों को मतलब कूल बनने का, ओके बनाना, चीजों को नॉर्मलाइज कर दो इसको, कि इट्स ओके, नोबडी इज परफेक्ट, आई एम नॉट अ गॉड. नेगेटिविटी को ज्यादा फैलाने का भी एक, जैसे क्या होता है कि दिल्ली में, जैसे आई एम नॉट नॉर्मलाइजिंग, राइट, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या होता है कि जैसे दिल्ली में कई सारे वीडियोस आते हैं ना, अचानक से वायरल हो जाते हैं कि दिल्ली में किसी गली में किसी ने गया, दिन दहाड़े किसी को खून कर गोली दिया, मार दिया, चाकू घुसा के उसको मार दिया. बताओ. तो व्हाट डज इट डू, इट मेक्स यू वेरी स्कैर्ड, राइट, कि अरे क्या Yeah. चल रहा है दिल्ली में. बट एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट वन डे, इफ यू रियलाइज, तो ऐसा तो था नहीं कि इंडिया में क्राइम होते नहीं थे, है ना. कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को मार ही रहा था, राइट. क्राइम तो रोक नहीं दिया है, लॉ एंड ऑर्डर इतना टाइट है नहीं कि सारे क्राइम रुक गए हैं. कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी का दिन दहाड़े खून कर ही रहा था, राइट. अभी बस क्या हुआ है कि सीसीटीवी और सोशल मीडिया की वजह से यू गेट टू नो इट ऑल द टाइम. तो मतलब पॉइंट में बस ये कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव कंटेंट भी जैसे बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया है उसका, राइट. है ना. तुम्हें पता नहीं था पहले, यू वर नॉट स्कैर्ड टू गो अराउंड बिकॉज तुम्हें पता नहीं था कि अगर बगल वाली गली में भी किसी का मर्डर हो गया है तो यू डोंट नो अबाउट इट, राइट. बट अभी तो मतलब पूरी दिल्ली को पता होगा अगर तुम्हें बगल वाली गली में कुछ हो गया. हाँ, लेकिन नेगेटिव कंटेंट इजीली एक्सेसिबल होने के बाद भी आपके दिमाग में जब एक फिल्टर होता है कि आप चूज कर फिल्टर सकते हो. होना ही तो बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, वो फिल्टर जो इतना नहीं आसान है, नहीं होता ना ये फिल्टर अगर नहीं हो रहा है, यही एक क्वेश्चनेबल चीज हो रहा है, क्योंकि इंडिया है ये जो हमारा देश है, इसमें हम इतने जनरेशंस का नॉलेज बेस हमारे पास गिवन है कि हम कभी भी उस पे टैप इन कर सकते हैं और हम अपना बेटर वर्जन बन सकते हैं, जो कि ध्यान से होता है. इसमें अगर टैप इन करे एक वुमन और वो अपना डिवाइन फेमिनिटी को एक्सेप्ट करे, वो भी एक औरत शक्ति के रूप में खुद को एक्सेप्ट करे, तो भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज. जैसे अपने आदमी के साथ अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बन रहा, मतलब आप उसके साथ डिस्टेंस ही रह रहे हो, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट द रिलेशनशिप टू ब्रेक. आपके पास इतना पावर ही नहीं है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओ, किसी भी बारे में बात कर पाओ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, अपना प्यार जता पाओ या गुस्सा हो पाओ या अपना इम्परफेक्शंस दिखा पाओ. जस्ट बी रियल यू. अगर हर चीज अपना आदमी को प्लास्टिक के नजर से बना के दिखाना है कि लिप्स भी मेरा परफेक्ट है, लिप जॉब करा लिया, नोज भी मेरा एकदम शार्प है, मैंने नोज जॉब करा लिया, चिक्स भी मेरे एकदम हाई है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तो फिर आप उसको एक इल्यूजन में डाल रहे हो ना कि आप परफेक्ट हो.
जिस दिन उसको लगेगा कि आप परफेक्शन से थोड़ा सा इधर उधर जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ और बेटर ऑप्शन चाहिए. A person needs to understand that love would be about accepting and embracing the flaws. उसके लिए एक woman को a woman has to be herself. She has to have the capacity to embrace her divinity and embrace her shakti and be spiritual enough to have the power to communicate with her man. She can't be so scared, right? अगर आपका आदमी किसी और को देख रहा है, if you see somebody and I don't like it, then I'll just express it to you ना. Will I be like नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बोल नहीं सकती, रात को रो और सो जाओ, कुछ बोलना मत, क्योंकि बोलोगे तो फिर तो भाई पता नहीं कल क्या होने वाला है. हाँ, इफ यू मिसबिहेव सम टाइम एंड इफ आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू से बेबी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको, दिस वाज नॉट राइट, तो देन तो बोथ तो इंडिविजुअल्स आर रिवॉल्विंग. अगर मैं एक्स्ट्रा खाना खा रही हूँ, मैं बहुत मोटी हो जा रही हूँ, आप मुझे प्यार से अगर ये नहीं बोल पाओगे बेबी स्टॉप, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, right? Then you are not being real. And when you're not being real, if you don't have the that real bonding, just to be yourself and knowing each other, that you're not perfect, I'm not perfect, and we still choose to embrace each other, and you don't have to pull off a natak in any way, then it's much more simplified na. The woman also needs to be in her power to be herself, क्योंकि आज के डेट पे you will see lot of women to impress her man would not be herself. She'd be so sweet, sweet, extra nice, extra good. तो अपने अंदर का काली को भी चैनलाइज करो. जब तांडव करने का मूड हो तो करो तांडव, तो वो he'll come into his shiv and he'll calm you down. and अपने अंदर का पार्वती को भी चैनलाइज करो. Be that nurturing person. आपको रियल रहना चाहिए. And I think a lot of times today you can see it from the face only, when so many things on the face level is changing. Nose, eyes, cheeks, wigs, सब change. तो आप एक रियल ह्यूमन बीइंग ही तो नहीं रह रहे हो, प्लास्टिक ही तो बन जा रहे हो. सही बात. और इतना डर है आपको, आपका आदमी गुस्सा होकर चला जाएगा, उसके पास इतने ऑप्शंस है, इतने मतलब इतने ऑप्शंस, डर में आप कैसे जियोगे किसी के साथ. और आदमी को भी एक तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसमें मत टिको ना. डोंट फोर्स योरसेल्फ. लीड ऑन क्यों करना है. लोग ऐसे मैन हैं जो सालों सालों तक रिलेशनशिप चला लेते हैं जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल शक्तिमान जैसे, बिल्कुल ऐसे ही मजाक में, कोई मतलब रीजन नहीं है. ही इज नॉट इनटू हर, बट ही इज नॉट लीविंग हर, जस्ट लाइक दैट. सैड होके अपना रिलेशनशिप चला रहे, तो क्यों चला रहे. सुपरफिशियल चीजों को उसके जवानी के टाइम में उसको छोड़ दो, तो कहीं भी किसी से आके सेट भी हो सकती है. उसको बूढ़ा करके 55 बना के फिर छोड़ने का क्या मतलब बनता है. ना तो उसको कोई प्यार मिलेगा, ना वो आगे जाके किसी के साथ रह पाएगी, वो सिंगल रहेगी और तुम मूव ऑन कर जाओगे. कितना खतरनाक चीज है ये. एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट्स अ वुमन टू स्टे सिंगल, बिकॉज नहीं तो कैसी औरत है. शील बी लाइक क्राइंग, जैसे होता है ना शादी, एक अगर हस्बैंड मर जाए तो विधवा, पहले नहीं होता था कि रीमैरिज होनी चाहिए, बिकॉज सारा नेगेटिविटी वुमन के ऊपर रहता है. And he can move on, and that was a better chick, that's why only he left her na. She was not good enough. So it is not about the woman's worth, she needs to understand that. And the man also needs to understand that उसको खुद खुश रहना है. She is not here to give you happiness. वो happiness लाती है, then that's an add on. खुद का एक तरीका होना चाहिए ना खुश रहने का. I stay happy so that you can pour it. तुम खुद ही खुश नहीं रहना आ रहा है, तुम कैसे pour करोगे किसी और को. वो किसी और का जॉब थोड़ी है. और जिस इंसान के साथ तुम कनेक्टेड नहीं हो उसके साथ लीड ऑन क्यों करना. तुम्हें पसंद है, तुम शादी क्यों कर रहे हो. मत करो शादी, स्टार्टिंग में ही मत करो. शादी भी कर लिया, बच्चे भी हो गए, अब फैमिली भी बन गया, चलते चलते बच्चे क्लास 5 में भी पहुंच गए, देखते देखते 2 साल 3 साल करके 10th में भी पहुंच गए, अब तुम्हें लग रहा है नहीं भैया और नहीं हो सकता. दैट इज नॉट गुड ना. हाँ, तो आई थिंक 35 मिनट्स हो गया है, so 5 मिनट और कर लेते हैं. नहीं, this is enough for today. We'll see you in the next episode. Bye bye. And we try to keep it as real and genuine as possible, and we talk about अपना real things, सारा authentic knowledge things, हम निकाल के दे देते हैं. and we जितना हमारे हाथ में. are making this to make sure that we talk about things that is genuine and that is authentic and that is real. So we need some real things out there. Not everything needs to be Fake. fake and pushed under the carpet, and जो भी अच्छा नहीं है उसके बारे में बात मत करो. No? Because if we all don't voice our opinions about what is right, then how are we going to make a good society? Everybody will get hurt और कोई कुछ बात नहीं करेगा. Yeah. Obviously.
people can have difference of opinion. ये Yes. हमारा opinion है, हाँ, and that's what we stick. बिकॉज इससे एक वुमन खाली हर्ट नहीं हो रही है, वो हर्ट हो रही है, उसके बच्चे हर्ट हो रहे हैं, एक फैमिली हर्ट हो रहा है, आदमी भी आगे जाके And सेटिस्फाइड नहीं रहता we है. find it so much more peaceful to be together instead of seeing people जो हालत आजकल dating का है, ये छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चली गई, like you know this women coming and asking कि अच्छा मेरे पास एक boyfriend है, मेरे पास एक friend zone में लड़का है, tell me कौन सा, which Yeah. one should I choose? That should also not happen. Like एक तो वुमन के this is पास the 5 ऑप्शंस रहते हैं एक साथ. लड़के के पास भी 10 options है because of आज के time में, तो it's हाँ. like obviously like it's your need, right? But you will not trust a woman ना जिसके पास 5 ऑप्शंस है. How do you trust a guy जिसके पास 10 option है? ये तो नैश इक्विलिब्रियम पैराडॉक्स हो गया. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आज का गेम थ्योरी जो हो गया ना time ये है, वाला. जो -1 जो -1. dating का scene हो प्रिजनर्स गया है, डायलेमा. जो dating का scene आजकल हो गया है ना, मतलब obviously तुम्हारा hormones हैं, you're just young, है ना, तो obviously you will go in a relationship, but जैसा हालत इन लोगों ने कर दी, मतलब सोसाइटी में चल रहा है, it's very बहुत ही ज़्यादा mind fucking टाइप का है. Yeah. है ना, if you're like one of those single people out there, it's very hard for you Yeah. now, है ना. ऐसे तो मैं मतलब क्या कहते हैं सीरीज वगैरह में देखता था, जो अमेरिका के How I सीरीज Met Your How I Mother. Met Your Mother, फ्रेंड्स, इन सब में ऐसे दिखाता था कि वो सब ऐसे बोलते थे, वो डेटिंग इज सो हार्ड, डेटिंग इज सो हार्ड. Yeah. आई वाज लाइक व्हाट डेटिंग इज सो हार्ड, कुछ भी मतलब. हाँ. चलिए हमारा इंडिया का सीन नहीं उधर ही होता होगा, बट अभी तो इधर हो गया है ना. सो it's not easy, it's not stable. Yeah. बहुत ज़्यादा टेंशन में, and then you are in that age कि तुम्हें अपना करियर भी बिल्ड करना है. और कर्मा भी तो होता है. हाँ सही बात है. चलो ठीक है, इसी बात पे इस एपिसोड को एंड करते हैं. बाय बाय. Lots of love. Sending you universe blessings. Bye.